Hi guys, welcome back to my channel. This is Vaishnavi and I really hope you guys are doing well. I know and I'm really sorry that I haven't uploaded a single video, not even a short, in last 3 months. I am not taking you guys for granted at all. I will share with you all what happened in last 3 months and why I was not able to shoot or post anything online. So yeah, and also I'm going to share with you all a bunch of empties and will I repurchase it or not in the later part of this video. But before that, I'm going to start with life update and explain everything what I was doing in those 3 months and why I was not able to post anything for you guys, because I was reading your comments and which was so heartwarming. Few of you also messaged me on Instagram that are you okay, why you're not able to shoot or post anything, why you're not posting anything, we are missing you online. So thank you so much for those messages. I was feeling so bad, but I changed a product in my skincare routine. It gave me a bad eye infection, and due to that I have to take 15 days of leave, and after that one thing led to another and I was not able to shoot, post anything. So those who are interested only in the empties part, I will leave a timestamp right here so you can directly jump to that part of the video. And if you guys want to know due to which product I got a bad eye infection, then please keep on watching. इन द मंथ ऑफ जुलाई स्टार्टिंग में ही मेरा सीरम खत्म हो गया था मिनिमलिस्ट का, तो मैंने ऑर्डिनरी का नाइसिनामाइड 10% का सीरम मंगाया था एंड आई वाज लाइक ओके, आई एम गोइंग टू यूज मिनिमलिस्ट. मिनिमलिस्ट एनीवेज इज अ कॉपी ऑफ ऑर्डिनरी. ऑर्डिनरी तभी अवेलेबल नहीं था, सो आई वाज यूजिंग मिनिमलिस्ट. तो अभी अवेलेबल है तो मैं वही ले लेती हूँ, वही यूज कर लेती हूँ एंड इट वॉज चीपर देन मिनिमलिस्ट. सो आई वाज लाइक ओके फाइन. सो मैंने नायका से उसे ऑर्डर कर दिया एंड आई यूज्ड इट फॉर डे 1 एंड डे 2 को मुझे यहाँ छोटे छोटे ऐसे दाने आने लगे. मैं यहाँ पर पिक्चर रख दूंगी. इट वॉज लाइक अ लिटिल रिएक्शन. आई थॉट माई स्किन इज पर्जिंग, मेरे स्किन को इसकी आदत नहीं है तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा. एंड अ वियर्ड पार्ट ऑफ द सीरम इज ये लगाते ही बहुत ज्यादा फोम अप हो जाता है आपकी स्किन पे एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू. मैंने श्रेयाजन का रिव्यू देखा था और उन्होंने भी बोला था इट्स वेरी फोमिंग ऑन द फेस बट the results are good. So I bought it because Shreyajan said it, I have to get it. बहुत ज़्यादा उनके स्किन केयर रिकमेंडेशंस मेरे साथ वर्क करते हैं. So I bought it and I thought my skin is purging or something, or it is not familiar with this serum, that's why it's happening, I don't know. On the third day my eye got a little itchy और सुबह को थोड़ा itch हो रहा था, लेकिन दोपहर और शाम तक वो बहुत ज़्यादा itch करने लगे और बहुत ज़्यादा गंक और पानी उसमें से आने लग गया. आई थॉट इट्स अ कैट हेयर और समथिंग, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी कैट है और डस्ट भी चल रहा था क्योंकि बाजू के घर में काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का. सो आई थॉट डस्ट वगैरह की वजह से मेरी आई इज वाटरिंग, ठीक हो जाएगा. सो आई वेंट टू माई जनरल फिजिशियन एंड उन्होंने मुझे एक सिंपल ड्रॉप दिया और एक कोई मेडिसिन दी, तो वो मैंने ली एंड आई पुट दैट ड्रॉप सोने से पहले आंख में. एंड नेक्स्ट डे व्हेन आई वोक अप, ओ माय गॉड, माय आई वाज सोर. इट वाज कंप्लीटली रेड. बहुत ज्यादा गंक उसमें से बाहर आ रहा था एंड व्हेन आई ट्राई टू वॉश इट, लाइक व्हेन आई वाज क्लीनिंग इट, मैंने देखा उस गंक में छोटे छोटे ब्लड क्लॉट्स थे एंड आई वाज so traumatized that time. I started panicking. I was like, I have to go to the eye doctor, I have to go to the eye doctor. Still I went to my general physician and he told me that you have to go to the eye doctor. तो सिंहगढ़ रोड पे एक डॉक्टर है, डॉक्टर पाठक, जिनके पास मैं रेगुलर आई चेकअप के लिए जाती रहती हूँ, तो मैं उन्हीं के पास गई. एंड व्हेन ही वाज चेकिंग माय आई, सो ही आस्क्ड मी, हैव यू डन अ फेस पेंटिंग और समथिंग ऑन योर face? I was like, no, why are you asking this? So the kind of pimple you have here similarly is happening under your eye, under your lid over here. And I didn't understood what happened and suddenly मेरा चमका कि मैं ये सीरम यूज कर रही हूँ, तब से मुझे रिएक्शन आना स्टार्ट हुआ है. So I told him that I'm using this new serum and he asked me to stop that using immediately. You can see here मैंने बहुत थोड़ा सा यूज किया है, 3 दिन में क्या ही सीरम यूज करूंगी मैं. It was a complete eye infection and he told me that it is filled with pus. Similarly with that my skin condition was getting worse and worse and worse and काफी ज्यादा rash patch हो गया यहाँ पे. एंड आई वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग बिकॉज माई वर्क इज 9 to 5 कंप्यूटर के सामने होता है. मुझे 15 दिन उससे छुट्टी लेनी पड़ी. फॉर द फर्स्ट 7 days इट वॉज नॉट रिकवरिंग एट ऑल. वो पूरी की पूरी लाल ही थी, बहुत गंक आ रहा था, बहुत डिस्कम्फर्ट था. इफ आई यूज टू स्लीप नेक्स्ट डे मुझे आंख खोलना भी मुश्किल हो जाता था एंड इट वॉज वेरी अनईजी. एंड उसके बाद जब उन्होंने मेडिकेशंस थोड़े स्ट्रॉन्ग किए, आंख के ड्रॉप्स चेंज किए, 1-2 ट्रायल के बाद वो थोड़ा कम होना स्टार्ट हुआ
एंड ड्यू टू दैट 15 days आई वॉज नॉट एबल टू वर्क एट ऑल. और 15 दिन के बाद जब मैं काम पे गई, ओ माई गॉड, इतना ज़्यादा प्रेशर था, इतना ज़्यादा काम बढ़ गया था, बिकॉज 30 दिन का परफॉर्मेंस मुझे 15 days में डिलीवर करना था, विच वॉज एक्चुअली इम्पॉसिबल. बट आई गॉट सो बिजी. और जैसे ही मेरे आँख का इशू थोड़ा रिजॉल्व हो गया, मेरा ऑफिस स्टार्ट हो गया, मैं वर्क फ्रॉम ऑफिस स्टार्टेड एंड ओ माई गॉड इट वॉज वेरी हेक्टिक. मेरा वर्क लोकेशन बहुत ज़्यादा दूर है और मुझे नोडल ट्रांसपोर्ट मिलता है. फॉर दोज हु डोंट नो व्हाट इज नोडल ट्रांसपोर्ट इज लाइक मुझे एक पिकअप पॉइंट तक जाना पड़ता है, वहां से मेरी ऑफिस की कैब मुझे पिक करती है, फिर वो मुझे ऑफिस छोड़ती है. सिमिलरली जब शाम को जब ऑफिस खत्म होता है तो मुझे नोडल पॉइंट तक ही छोड़ते हैं और फिर वहां से मुझे अपने आप घर आना पड़ता है. इट वॉज वेरी हेक्टिक बिकॉज मेरा ऑफिस मेरे घर से इतना दूर है. मैं 9 बजे ही घर से निकलती थी, इवन दो मेरा ऑफिस 11:30 बजे होता था. एंड 8:30 को जब मेरा ऑफिस खत्म होता था, मुझे घर आते आते 11:30 12 हो जाते थे. एंड मेरी बॉडी में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं बचती थी कि मैं कुछ शूट करके पोस्ट करूँ. इट वॉज वेरी हेक्टिक. और लॉकडाउन के बाद फर्स्ट टाइम मैं ऐसे पूरे मंथ के लिए ऑफिस गई हूँ, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचती थी कुछ शूट वगैरह करने की. एंड जैसे मैं ऑफिस जा रही थी, मैं बस ऑफिस के कैंटीन में का ही खाना खा रही थी. उसकी वजह से जब ऑफिस बंद हुआ, मैं फिर से बीमार हो गई, विच वॉज नॉट लाइक सीवियर बीमार, लेकिन मुझे फीवरिश फील हो रहा था और बहुत ज़्यादा अनईजी वीकनेस आ गया था. मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे वायरल इन्फेक्शन हो गया, बट इट वॉज नॉट वायरल. आई डिड सम ब्लड टेस्ट एंड देयर इज सम something I need to take care of, which I am trying to do right now. आफ्टर दैट मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं था. मैं बहुत ज़्यादा लथार्जिक फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फील कर रही थी. मतलब बेड से उठना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था मेरे लिए. एंड आई वॉज नॉट इन दैट मेंटल स्पेस कि मैं उठ के वीडियो बनाऊँ. बट आई वॉज रीडिंग योर कॉमेंट्स, यू गाइज वेर मैसेजिंग मी कि क्या हुआ है, आप वीडियोज़ क्यों नहीं पोस्ट कर रहे हो. And it motivated me in a different way. So one day I decided, no, this is not going to happen like this. I have to make some changes in my life. I have again a couple of kilos here and there due to that unhealthy eating and some medical issues as well. So उसके लिए मैंने Healthify join किया है. Do let me know if you're interested to know that fitness journey. I don't want to do YouTube just for the sake of it. Okay, मुझे बस ऐसे ही वीडियो नहीं बनानी है. आई वॉन्ट दैट मोटिवेशन, आई वॉन्ट टू फील गुड व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो. अगर मैं अच्छा फील नहीं करूँगी तो आप भी नहीं करोगे. आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस एंड व्हाई आई वाज नॉट एबल टू फिल्म एनी वीडियोज. इफ यू हैव एनी सजेशंस विच वीडियोज आई शुड डू नेक्स्ट, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बहुत ज़्यादा फेस्टिव कॉन्टेंट अभी आने वाला है, विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर फेस्टिव सीजन शॉपिंग. सो या, do let me know if you want to see any other videos, any type of videos, any concepts of videos. I will love to do that for you guys. And with that, we will start with the empties now. First empty is, please ignore the cat hair on this, it is Herbal Essence Repair Argan Oil shampoo. I do not think this is a good shampoo because it made my hair so rough. और इसके साथ जो कंडीशनर है वो अभी भी है मेरे पास, विच इज़ ओकेश. बट ये शैम्पू की वजह से मेरा बालों में डैंड्रफ इतना ज़्यादा बढ़ गया था, इतना ज़्यादा ड्राई आउट कर देता था मेरे स्कैल्प को और मेरे बालों को. आई डू नॉट लाइक इट. आई एम नॉट गोना रीपर्चेस इट एट ऑल. इज अनदर शैम्पू विच इज़ फ्रॉम पिलग्रिम. इट्स देयर सल्फेट फ्री शैम्पू विथ आर्गन ऑयल, camellia and white lotus. This is how it looks like. This is a sulfate free shampoo and I don't know why I do not like sulfate free shampoos because मेरा dandruff का issue है. And without the sulfate in this shampoo मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ भी नहीं करता है, because I can see the dandruff, I can see the build-up. But dandruff वगैरह जाने की उम्मीद अब मत रखना. अगर आपको dandruff बिल्कुल नहीं है but you're looking for something that will make your hair stronger and will take care of your hair in general, you can definitely give this a try. But मुझे ऐसा लगा कि because of this, I don't know, my scalp was not clean. मुझे ऐसा clean feeling नहीं आया इसके साथ. So yeah, इसको मैंने ख़त्म तो कर लिया है. Sad part कि मेरे पास एक और बॉटल है इसका, but still I'm going to use that as well. या फिर मैं मम्मी को दे दूँगी, पता नहीं. But yeah, not gonna repurchase this. Hair care हो गया है. We will start with body care. This is Plum Body Loving Body Wash in the variant Caramel Popcorn and oh my god, this smell legit like Alpenliebe. This is so good. इसका जो fragrance है after a bath
2 से 3 घंटे आपके बॉडी पे चल जाएगा. दिस इज वेरी नाइस. विंटर के लिए तो ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है. आई लव्ड इट. और इसके बहुत सारे वेरिएंट ऑलरेडी मेरे वैनिटी में है, सो आई एम नॉट गोइंग टू रीपर्चेस दिस पर्टिकुलरली, बट दिस इज अ रियली रियली गुड फेस वॉश, क्लीनिंग वाइज एज वेल. This makes my skin very soft and clean at the same time, which is very rare because जो बॉडी वॉश होते हैं जो क्लीन करते हैं वो ड्राई कर देते हैं, एंड जो मॉइस्चराइज करते हैं वो क्लीन नहीं कर पाते, बट दिस डज द जॉब. दोनों काम ये बहुत अच्छे से कर लेता है. एंड इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था, बट या दिस इज रियली रियली नाइस. थिंग फॉर बॉडी इज द प्लम बॉडी लविंग बॉडी मिस्ट इन द शेड ऑर्किड यू नॉट. पूरा का पूरा मैंने इसे को खत्म कर लिया है. अभी ये जो बचा है वो आ भी नहीं रहा है बाहर, तो मुझे इसे खोल के निकालना पड़ेगा. But this is so good. I was never a floral scent person, but this, oh my god, this is really really good. मुझे ऐसा लगता था मुझे वैनिलाज एंड चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है फ्रेग्रेंस में, but this completely changed my mind. This is a perfect summer fragrance. अगर summers में अगर ये है आपके पास, so you will be sorted for all summer. This is really nice. Its lasting power is also really good. This lasts for 3 to 5 hours on your body. अगर आप कपड़ों पे छिड़कते हो तो और ज़्यादा टाइम टिकता है, लेकिन this is really 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 good. Okay, so the next thing is deep exfoliating peel off from pack. This is how it looks like. completely खत्म हो गया, इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है. अभी बहुत सालों से मैं इसको यूज कर रही हूँ. दिस इज अ गुड एक्सफोलिएट. मुझे केमिकल एक्सफोलिएटर से बहुत ज्यादा डर लगता है. केमिकल पील्स लुक्स वेरी स्केरी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इफ you know keep that for a longer period of time, if you don't know कितना टाइम आपकी स्किन के हिसाब से उसको रखना है, तो आप ओवर एक्सफोलिएट भी कर सकते हो. बट दिस ऑन द अदर पार्ट इट्स अ फिजिकल एक्सफोलिएटर. दिस गेट बॉल्स अप ऑन योर स्किन, और उसके साथ साथ आपकी सारी डेड स्किन एंड जो क्लॉक पोर्स है वो सारे ओपन हो जाते हैं, सारी डेड स्किन निकल जाती है. सो आई लव दिस इज गुड. बट मेरे पास एक और अल्टरनेटिव है जो मैंने अल्फिया के रिकमेंडेशन पे लिया था, विच इज वर्किंग फॉर मी रियली गुड, सो आई एम नॉट गोइंग टू रीपर्चेस दिस. Next is a face wash, and it will be a no surprise. It is a minimalist salicylic acid face wash. If you have a texture on your skin or a little bumps here and there, आपकी थोड़ी सी acne prone skin है, बहुत ज़्यादा ही क्लॉक्ड पोर्स है, तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो. दिस इज रियली रियली गुड. मेरे स्किन के टेक्सचर के लिए इसने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, एंड दिस इज वेरी अफोर्डेबल एज वेल. एमटी इज विच आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इन दिस वीडियो इज मिनिमलिस्ट 10% niacinamide serum. I love this serum. Like this is my 7th or 8th or 10th bottle. I don't even know. I have lost the count. This is the best niacinamide serum available in India. Love this. This makes my skin very ग्लास लाइक. कुछ ज्यादा टेक्सचर इशू नहीं होता है. डी पिगमेंटेशन के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है. कुछ आपको एक्ने मार्क्स का इशू हो उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. सो या दिस इज अ नेक्स्ट एम्प्टी. मेरे पास ऑलरेडी इसका बैकअप है, आई एम ऑलरेडी यूजिंग इट. सो थिंग इज द क्लेंजिंग बाम फ्रॉम प्लम इल्यूमिनेंस क्लेंजिंग बाम. दिस इज रियली गुड. दिस इज इन द ट्रेवल साइज एंड आई लव दिस. ये बहुत अच्छी तरह से आपके मेकअप को मेल्ट डाउन करता है. थोड़े से पानी के साथ मिक्स करके भी अपना फेस वॉश कर दोगे ना, तो पूरा का पूरा मेकअप का रेसिड्यू चले जाएगा आपके फेस से. इसके बाद अगर आप फेस वॉश यूज करोगे बिल्कुल भी मेकअप नहीं बचेगा आपकी स्किन पे. एंड द बेस्ट थिंग, दिस डज नॉट इरिटेट माई स्किन. मैंने काफी सारे क्लेंजिंग बाम ट्राई किया है विच इरिटेटेड माई स्किन अलॉट, बट दिस इज रियली रियली नाइस. इफ यू वॉन्ट टू ट्राई, इसका मिनी वर्जन है 99 रुपीज में बस, सो आप ले सकते हो. एवरीथिंग विल बी लिंक डाउन बिलो. एंड प्लम के साथ, बाय द वे, आई हैव अ कूपन कोड. आई एम रियली हैप्पी टू टेल यू दैट कि प्लम के साथ मेरा कूपन कोड है जिसके साथ आप 10% जो है सेव कर सकते हो. सो कूपन कोड यहाँ पे होगा. नेक्स्ट टाइम अगर आप प्लम से कुछ शॉपिंग करो, डोंट फॉरगेट टू यूज माय कूपन कोड ऑन दैट वेबसाइट. ये ऐसा पहली बार हुआ है मेरे साथ कि एक लिप बाम खत्म होने के बाद मैंने सेम दूसरा लिप बाम लिया और वो भी खत्म कर दिया. दिस इज फ्रॉम फ्लावर ब्यूटी. दिस इज अ ग्रेट लिप बाम. अगर आपकी बहुत ज्यादा ड्राई चैप्ड पिगमेंटेड लिप्स है, यू शुड डेफिनेटली गिव दिस अ ट्राई. इट्स वेरी लाइक थिक बट नॉट स्टिकी, यू नो व्हाट आई मीन. बहुत ज्यादा नरिशिंग लिप बाम है ये. अगर फ्लावर ब्यूटी इन जनरल इज ऑलमोस्ट डेड इन नायका, क्योंकि ज्यादा वैरायटी है नहीं, कुछ नया लॉन्च भी नहीं कर रहे हैं वो. बट दिस लिप बाम इज रियली रियली गुड. अगर आपको कहीं से मिलता है तो आप जरूर लीजिए. लास्ट एम्प्टी इज दिस इज फ्रॉम एल्फ. दिस इज देयर क्लियर ब्राउ एंड लैश मस्कारा
लैश साइड तो वैसे का वैसा ही है, मैंने ज्यादा यूज नहीं किया है, बट द ब्राउ साइड इज completely empty. This product is really good. This will last for, जब तक आप इसे निकालते नहीं हो तब तक ये चलेगा, बिकॉज इट जस्ट लैमिनेट्स योर ब्राउ. दिस रिटेल्स फॉर ओनली 250 रुपीज, और अगर एल्फ पे कुछ ऑफर चल रहा है तो आपको 250 में 2 भी मिल सकते हैं. इफ यू हैव रियली ब्रुशी ब्राउज एंड यू वांट टू टेम देम अ लिटिल, यू शुड डेफिनेटली गिव दिस अ ट्राई. ये बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी. एंड ऑफ कोर्स द लास्ट प्रोडक्ट विच इज नॉट एम्प्टी बट आई एम गोइंग टू थ्रो अवे इज दिस ऑर्डिनरी नाइसिनामाइड सीरम. आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट एनीमोर. आई एम गोइंग टू थ्रो इट अवे बिकॉज आई डोंट वांट एनी अदर इन्फेक्शंस. I wanted to use on my elbows, on my knees, on my feet, but I don't want to take a risk. मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाली, so I'm going to throw this away. I highly request you guys to please patch test for whatever you put on your face. It's very important to patch test. Even if I am recommending you something, please do not forget to patch test first. ऐसे कुछ भी face पे मत लगा लो. That's it for today's video, guys. If you like this video, please give it a thumbs up. Subscribe to my channel. Hit the bell icon right next to it. फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम. बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करने पड़ सकते हैं मेरी तरह. डोंट बी लाइक मी. प्लीज पैच टेस्ट एवरीथिंग विच यू यूज. एंड येस, आई लव यू ऑल सो मच. बाय.